Hello students, this is our third lecture related to the digestive system. In first lecture, we studied about the general features of alimentary canal, digestion and parts of buccal cavity. In second lecture, we studied rest of the alimentary canal from esophagus to the rectal portion. And today we are going to study the physiology of digestion. That is how food is digested. So, as we earlier said, digestion is breaking down of complex foodstuff into simple absorbable form, and this is achieved by two ways. दो तरीके से हम डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं. As you can see in the first diagram, comic 1, mechanical process, that means chewing, या जब आप आगे पढ़ेंगे स्टमक के अंदर चर्निंग होती है. तो मैकेनिकल के अंदर हम मसल्स को मेनली यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम चबा रहे हैं, वी यूज़ द जॉ मसल्स, दैट इज़ द मैसेटर. एंड इन सेकेंड फेज देर इज़ अ केमिकल प्रोसेस. Chemical process, that is chemical digestion, is performed with the help of enzymes. So in the second diagram, as you see, a large macromolecule is attached with the enzyme and water is also helping it to break the bonds. So the enzyme is also called as hydrolytic enzyme or hydrolases. So in buccal cavity, there are two major functions performed. First is chewing. Biologically, we call it as a mastication. And second is swallowing, that is deglutition. तो जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर दो मेन काम हो रहे हैं, मैस्टिकेशन और फिर हम चबाए हुए खाने को निगलते हैं. हालांकि ह्यूमंस के अंदर हम सलाइवरी एक्शन के ज़रिए केमिकल फेज भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन जनरल एनिमल्स में बक्कल कैविटी के अंदर ये दो मेन काम होंगे. टीथ एंड टंग हेल्प द मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा. तो जो प्रॉपर मिक्सिंग है वो यहाँ पर होगी. दांतों से हम चबा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है फूड पार्टिकल्स का, और उन सब के चारों तरफ जो है सलाइवा लगा दी जाती है. और इस काम में चबाने के दौरान भी tongue moves the food in the buccal cavity so that it can be properly chewed. At the same time, it also helps in proper salivation, coating of saliva on the food particles. उसमें भी teeth और tongue दोनों मदद कर रहे हैं. And this chewed food enveloped or saliva coated mixed with saliva is called as bolus. सलाइवा के अंदर म्यूकस या म्यूसिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है जिसकी मदद से खाने को निगला जाता है, यानी बोलस को हम निगलते हैं. निगलने के प्रोसेस में वापस से टंग विल पुश द बोलस इन फेरिंग्स एंड देन द एपिग्लॉटिस स्लाइटली मूव्स अप so that it can enclose the tracheal opening, that is glottis. और जो यूवुला है वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है इंटरनल लेयर्स को ढकता हुआ. एंड इन दिस वे डिग्लूटिशन इज परफॉर्म्ड with the help of pharyngeal muscles. As here we see in a X-ray, when a person is swallowing, that is deglutition being performed. सलाइवा जो हमारा सबसे पहला निकलने वाला डाइजेस्टिव जूस है ओरल कैविटी के अंदर, that is released by three pairs of salivary gland and it consists various components. बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम रहती है दैट इज टाइलिन, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, एंड वन antimicrobial enzyme is also there, that is the lysozyme. Besides this, there are many other components which you can see in the table or the flow chart. But the major one that performs the specific function, mucus or mucin, that act as a lubricant, जिसकी वजह से हम खाने को आसानी से निगल पाते हैं मुंह में
जो है इसको मूव कर पाते हैं. The salivary amylase or ptyalin that helps in digestion of the starch. And the lysozyme is antimicrobial. It dissolve, digest the bacterial cell wall, and therefore it act as antibacterial agent, helps in our defense mechanism. तो सलाइवा जो है केमिकल फेज को स्टार्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज है जो पीएच 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक पीएच में स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा माल्टोज में. तो जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन ऑफ many thousand glucose units, and these are finally broken in disaccharide. Disaccharide means two glucose units are connected in a maltose. तो जो भी हम खाना खाते हैं उस टोटल स्टार्च में 30% ऑफ द स्टार्च इज डाइजेस्टेड और हाइड्रोलाइज्ड by the salivary amylase in the buccal cavity, and it produces maltose, isomaltose, limit dextrins. इनको बनाया जाता है. And as we discussed earlier, lysozyme act as an antibacterial agent, prevents the infection, also kills the microbes present in the फूड. तो सलाइवा हमारे बहुत सारे काम कर रहा है. च्यूइंग में मदद कर रहा है, बोलस फॉर्मेशन, स्वॉलोइंग. इसके अंदर अमाइलेज है जो स्टार डाइजेस्ट करती है. इस सॉल्यूशन बनने की वजह से टेस्ट हमें मिलता है. कुछ और फंक्शन सलाइवा के जैसे रहते हैं. इट हेल्प्स इन स्पीच. थोड़ा बहुत जो भी हम सलाइवा बाहर निकालते हैं, या बहुत सीधे शब्दों में कहें तो थूक के ज़रिए बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकलते हैं. फूड को यह जनरेट करता है. एंड देन प्रोटेक्टिव फंक्शन है बहुत सारा, जैसा मेनली हमें याद रखना है लाइसोजाइम का. एंड नाउ द बोलस मूव्स फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस, और ईसोफेगस में एक अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता है. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक फैशन, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस. And peristalsis is very very important to bring the food downward. और बहुत strong muscle contractions ये रहते हैं जिसकी वजह से food और छोटे particles में टूटता है, जिसको कई बार segmentation भी कहते हैं. Then at the junction of esophagus and stomach there is cardiac sphincter, which is also called as gastroesophageal sphincter, और gastro जो ऊपर रीजन रहता है कार्डियक, उसकी वजह से इसको हमने कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा. गॉट इट. तो इस तरह से जो है स्फिंक्टर एक मसल रिंग होती है जो फूड को नीचे लाने में के दौरान एक प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम कर रही है. एंड नाउ द फूड रीच इनटू द स्टमक. स्टमक के अंदर जो है अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, क्योंकि स्टमक की जो म्यूकोसा है वो अंदर की तरह इस तरह से धसी हुई है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स. और इन पिट्स में आप देख रहे हैं बहुत तरह तरह की ग्लैंड्स हैं. जैसे आपने एनाटॉमी पढ़ी थी सेकेंड लेक्चर में, द लेयर इज म्यूकोसा विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा. द कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज लेमिना प्रोप्रिया एंड द इनर वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा. Then there is submucosa, which consists of blood vessels, lymph vessels, nerves, etc. Muscularis of the stomach consists of oblique muscles. Then there are circular muscles and the longitudinal muscle. और सबसे बाहर की तरफ जो layer है, that outer layer is serosa, the double epithelial fold, right? और यहाँ पर जो हमें मेन ध्यान रखना है, there are certain cells. पैराइटल सेल जो है उसको ऑक्जेंटिक सेल भी अपन कहते हैं, और यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेंगे. देन वी हैव द चीफ सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज zymogen cells which secretes pepsinogen. And the endocrine means hormone. There is one important hormone that we'll be studying later on, that is gastrin. तो गैस्ट्रिन हार्मोन भी निकलता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन में मदद कर रहा है. व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? द जूस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक म्यूकोसा इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस, विच कंसिस्ट
HCl, hydrochloric acid, pepsinogen, renin, Cassell's intrinsic factor and gastric lipase. तो इस तरह से जो है फूड अब स्टमक में आ गया, और स्टमक के अंदर जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत स्पेशल सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स हैं जो म्यूकस बनाएंगे, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पेप्टिक या चीफ सेल्स हैं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन बनाएंगे, इनएक्टिव पेप्सिनोजन बनाएंगे। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो HCl को रिलीज़ करेंगे। और इसके अलावा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकाला जाता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जी सेल या गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनके ज़रिए गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज को फेवर करता है। So these are the cells in the gastric pit which consist of various glands. तो रिपीट इसलिए किया है ताकि एक बार आप इसको वापस से स्टडी कर लें। पेराइटल सेल्स हो गए, चीफ सेल्स हो गए, एंटरो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो गैस्ट्रिन बना रहे हैं, म्यूकस नेक सेल्स हैं जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करेंगे। एंड देर आर मसल्स एज इन 2 स्लाइड पहले अपन ने अभी बात करी थी। मस्कुलरिस म्यूकोसा है और साथ ही साथ जो है मस्कुलरिस लेयर है, उसमें स्मूथ मसल्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स में है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। उनकी मदद से स्टमक में बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिसको हमने चर्निंग कहा था। इस चर्निंग का फ़ायदा ये है कि जो भी फूड नीचे आया है उसे प्रॉपरली गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला लिया जाए, एंड व्हेन इट गेट मिक्स्ड देन वी कॉल इट एज अ काइम। तो मुंह में आपने क्या नाम दिया था? बोलस। एंड इन स्टमक वी विल कॉल द पार्टली मिक्स्ड food with gastric juice is termed as chyme. These are again the same thing. The proenzyme pepsinogen हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार पेप्सिन बनने के बाद वो ऑटो कैटालिटिक है, दूसरी आने वाली पेप्सिनोजन को भी वह एक्टिव कर देगा। HCl स्टमक के अंदर एसिडिक pH को बनाए रखता है। द pH इज़ 1.8, तो हाईली एसिडिक pH इज मेंटेन्ड हेयर। पेप्सिन इसी एसिडिक pH में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाती है। तो पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, दैट इज लिटिल बिट स्मॉलर साइज ऑफ पेप्टाइड्स। तो पेप्सिनोजन वाज इनएक्टिव, activated by HCl in pepsin, and now pepsin acts on the proteins and produces peptones and proteose। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ी चेन है एमिनो एसिड्स की, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, इन टुकड़ों को ही हमने पेप्टोन या प्रोटियोज नाम दिया। एंड जो पेप्सिन है वो मेनली पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगी। 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और कौन से एमिनो एसिड हैं? प्रेफरेबली फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एमिनो एसिड्स के द्वारा बनाए गए पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही यह तोड़ती है। अब आप देखिए, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटली इसे शो किया गया है कि अगर आप मीट के एक टुकड़े को केवल HCl में डालते हैं तो हार्डली देयर इज मच अफेक्ट ऑन इट। पेप्सिन में डाला, स्लोली वह डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन जब आपने पेप्सिन और HCl दोनों को मिलाकर डाला तो इट गेट क्विकली डाइजेस्टेड। So that is how the enzyme and the acidic factor work together in our stomach. तो प्रोटीन को पचाने के लिए ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि म्यूकस का एक कोटिंग जो है वो स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर रहती है। इसका लुब्रिकेशन में मदद तो है ही सही, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज mucus protect the gastric mucosa from getting excoriation से बचाएगा, यानी उसको खुद नष्ट होने से उसे रोकेगा, या HCl का अफेक्ट जो है वह गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी बहुत मात्रा में रेनिन एंजाइम भी छोटे बच्चों में मिलती है जो भी दूध पी रहे हैं नेचुरली, उनके अंदर यह रेनिन एंजाइम होती है जो मिल्क प्रोटीन कैसीन को कोआगुलेट करने में मदद करती है।
तो इस तरह से जो है रेनिन इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स. Then third enzyme is gastric lipase is also there, but lipase do not function much because lipase require emulsification and alkaline medium, जो आप अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. Now the very important question is this, that why our enzymes do not digest our own alimentary canal. हम ऑटो डाइजेशन से कैसे बच जाते हैं? हमारी एंजाइम्स हमारे ही स्टमक में या इंटेस्टाइन को क्यों नहीं डाइजेस्ट करती? तो ये देखा गया है कि न केवल पेप्सिन बल्कि आगे आप जो पढ़ेंगे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ऑल मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म. यानी पेप्सिन किस फॉर्म में निकलेगी? पेप्सिनोजन. ट्रिप्सिन किस फॉर्म में निकलेगी? ट्रिप्सिनोजन. काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में. इवन रेनिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड एज प्रोरेनिन. देन HCl जो है वह इनको एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में एक्टिव करता है, और कैविटी को हमने एनवलप किससे कर रखा है? अ वेरी थिक लेयर ऑफ म्यूकस. गॉट इट? एंड देयर आर टाइट जंक्शंस बिटवीन द सेल्स, सो देयर इज नो लीकेज ऑफ gastric juice or intestinal juice into the mucosa. And even if it happens in less percentage, then damaged cells are very rapidly replaced. और ये स्टडी कहती है कि भाई लगभग हर तीसरे दिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा को हम रिप्लेस कर देते हैं. तो अगर कोई डैमेज हुई भी है तो दैट इज़ वेरी सून रिप्लेस्ड. एंड देर आर वेरियस मूवमेंट्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. तो जो लेयर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, मसल्स की, उनकी मदद से प्रॉपर मिक्सिंग भी होगी और आगे की तरफ उसको प्रोपेल भी किया जाएगा. अच्छा, कई बार आपने देखा होगा जब हम तेज़ मसाले की चीज़ खा लेते हैं या कोई इस तरह की स्पाइसी या ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमें हार्ट बर्न यानी कुछ हमें जलन सा महसूस होता है अपने ऊपर के पोर्शन में, अपने छाती वाले भाग में. दैट इज़ बेसिकली बिकॉज हेयर वी फाइंड द गैस्ट्रिक जूस इज गेटिंग अपवर्ड. अब यहाँ तो क्या है, म्यूकस की, वाइट कलर की म्यूकस की कोटिंग आपको दिख रही है, सो द पार्ट रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसिड. लेकिन ईसोफेगस के ऊपर यहाँ किसी तरह की कोटिंग या ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होती, तो एसिड का असर होगा वहाँ पर और वही जलन आपको फील होती है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं या जलन कहते हैं कि खाना खाया है तो जो है जलन हो रही है. दैट इज़ बिकॉज एसिड ऊपर की तरफ उछलता है. देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन द बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस जो है वो डुओडेनम के अंदर रिलीज़ होंगे. और जो बाइल जूस और पेनक्रियाज का जूस है, पेनक्रियाटिक जूस, वो कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से डुओडेनम के अंदर आता है, एज वी स्टडीड इन द एनाटॉमी. पेनक्रियाटिक जूस सबसे इम्पॉर्टेंट है. इस जूस में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, लगभग हमें 17+ एंजाइम्स की जानकारी है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएज. ये सब एंजाइम्स पेनक्रियाज के एसिनर सेल से निकलती है. हमने इसके बारे में भी एनाटॉमी वाले सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था. नीचे आप पेनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी का ये डायग्रामेटिक व्यू है. तो पेनक्रियाज में दो तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं. ये बीच में जो आप देख रहे हैं, दीज आर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो हार्मोन बनाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. और जो ग्रीनिश येलोइश कलर के जो सेल्स हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ एसिनर सेल्स, जिनसे डक्ट निकलकर ये पेनक्रियाटिक डक्ट है जो आगे डुओडेनम के अंदर जाएगी. और एसिनर सेल्स क्या बनाएंगे? दे प्रोड्यूसेस द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वी जस्ट मार्क्ड ओवर हियर. Besides this, there are also many other enzymes which are produced from these cells and released in the duodenum. सबसे important enzyme है trypsinogen. As we said, the suffix is "jan", that means it is inactive and it is activated by the enterokinase or enteropeptidase enzyme. Once it activates, then it can activate the other trypsinogen which is coming later on.
तो जो ट्रिप्सिन है वो ऑटोकैटालिटिक हो गई, दूसरे ट्रिप्सिनोजन को भी यह एक्टिव करती है। साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिव करेगी, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिव करेगी। लेकिन खुद सबसे पहली बार जब भोजन पहली बार डुओडेनम में पहुंचता है तो किसकी ज़रूरत रहेगी? एंटेरोकाइनेज की ज़रूरत रहेगी। और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ऊपर से आने वाले प्रोटीन्स जो पार्टली डाइजेस्ट हो गए थे स्टमक के अंदर, वो प्रोडक्ट प्रोटीओज और पेप्टोन्स इन पर काम करेगी और इनको डाइजेस्ट करके क्या बना देगी? डाइपेप्टाइड्स। नाउ देयर इज़ अ ग्रेट चेंज इन पीएच, दैट इज 7.8 टू 8.2 के बीच में पीएच रहेगा। और यह पीएच जो है यह एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं, कुछ पेनक्रियाज से बाय सिक्रेटिन जूस, कुछ जो है बाइल जूस में एल्कलाइन कंपोनेंट्स होते हैं, और कुछ जो सुकस एंट्रिकस है जिसमें ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन मटेरियल या बाइकार्बोनेट आयंस निकालती हैं। And trypsin mainly acts on the peptide bond of lysine and arginine amino acid. And chymotrypsin cleaves the peptide bond, cleave का मतलब cut the peptide bond from tyrosine, tryptophan and phenylalanine. Now here one point is very important, that chymotrypsin is acting on the same peptide bonds on which pepsin was acting. तो कुछ प्रोटीन्स जो है वो एसिडिक मीडियम में पेप्सिन डाइजेस्ट करती है, और अगर वो वहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर काइमोट्रिप्सिन उन्हीं को डाइजेस्ट करती है। सो एंड देयर इज अगेन पेनक्रियाटिक अमाइलेज which acts on all type of starch, and in pH 7.8 to 8.2 again starch का जो डाइजेस्टन प्रोडक्ट है वह डाइसेक्राइड माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रेंस होते हैं। एल्कलाइन मीडियम बनाए रखने का काम किसका है? सिक्रीशंस फ्रॉम द ब्रूनर ग्लैंड्स, जो केवल डुओडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस इसके जरिए निकलता है। देन बाइल जूस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो पिगमेंट हैं बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन, विच आर द प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डाइजेशन। जब आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन से बिलिरुबिन या बिलिविरिडिन जैसे पिगमेंट्स बनते हैं। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती, इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, लेकिन बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट जो है वो सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड एंड सोडियम टॉर्कोलेट या टॉर्कोलिक एसिड, जो फैट्स के साथ जुड़कर उसके सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिनको हम कहते हैं मिसेल्स। इससे सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और पेनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज के काम में भी आसानी हो जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ फैट ग्लोब्यूल, इसके साथ बाइल सॉल्ट्स जुड़ गए, सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और टुकड़ों में टूटने के बाद अब इसके ऊपर जो है पानी के साथ ये छोटे छोटे टुकड़े इमल्शन बनाते हैं। इस इमल्शन पर या इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एंजाइम काम करेगी। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अगर हम देखें यहाँ पर तो म्यूकोसा में आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। जो इंटेस्टाइन की फोल्ड्स रहती हैं, जिसको हमने नाम दिया था प्लीका सर्कुलैरिस, उन प्लीका सर्कुलैरिस के ऊपर विलाई थी, दो विलाई के बीच में क्रिप्ट्स थे। विलाई पर ब्रश बॉर्डर है, क्रिप्ट्स में भी कुछ सिक्रीटरी सेल्स हैं। इन सब का सिक्रीशन जो है वह कहलाता है सुकस एंट्रिकस। सो व्हाट इज सुकस एंट्रिकस? इट इज बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रश बॉर्डर epithelial cells of the villi and crypts of liver खून. It also includes the secretions from the Brunner gland, that is bicarbonate rich mucus, और म्यूकस ग्लैंड्स भी यहाँ पर खूब सारी हैं। अब यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स को हम गोबलेट सेल कहते हैं। स्टमक में हमने उनको म्यूकस नेक सेल्स कहा था, यहाँ पर गोबलेट सेल कहा जाएगा।
सुकस एंट्रिकस कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। अब ये फाइनल डाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कई तरह की डाइसैकेराइड्स को पचाने वाली एंजाइम है जिनको डायसैकेराइडेज कहा जाएगा, जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। डाइपेप्टाइड्स को पचाने के लिए डाइपेप्टिडेज, लिपिड्स को पचाने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज, एंड अगेन देयर इज न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए को पचाएंगे। तो फाइनली इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोटीन्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द एमिनो एसिड्स, द बेसिक यूनिट्स। Polysaccharide is first broken down into the disaccharide by amylase, and then disaccharide is broken down into its monosaccharide यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उस फॉर्म में तोड़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा जाएगा। एंड लास्टली फैट्स को हम तोड़कर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देंगे। ये देखिए, जो स्टार्च है उसको एमाइलेज की मदद से हमने दो जगह पर, सलाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से हमने उसे डाइसैकेराइड में बदला था। और डाइसैकेराइड्स में जो माल्टोज बना था उसको माल्टेज डाइजेस्ट करेगी, 2 ग्लूकोज बनेंगे। सुक्रोज को सुक्रेज डाइजेस्ट करेगी, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मेक्स 1 सुक्रोज, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसी तरह से लैक्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज। These will be separated या इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा by lactase enzyme. So finally, the polymers of carbohydrate are broken down into monosaccharides, their basic unit or single unit. In this way, तो maltose, sucrose, lactose are digested to their basic forms. Similarly, fats are digested by the pancreatic lipase एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो दोनों जगह से लाइपेज आएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान रखनी थी वो ये कि फैट्स जब डुओडेनम में आते हैं तो बाइल जूस उनके ऊपर एक्शन करती है, जिससे वो छोटी बूंदों में टूट जाते हैं। उन बूंदों का नाम क्या था, मिसेल्स या माइसेल्स। वो पानी के साथ मिलकर बनाती इमल्शन, इमल्सिफाइड फैट पर फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगी, जो डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स में इसको तोड़ देगी। तो इस तरह से फैट्स का फाइनल डाइजेशन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएज एंजाइम है। न्यूक्लिक एसिड्स को पहले न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा जाएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ा जाएगा और इनको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एंजाइम्स इन द सुकस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अर्लियर डाइजेशन, दैट इज फ्रॉम द पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स से जो बचे थे उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। दिस इज व्हाट वी जस्ट स्टडीड एंड दिस इज द समैटिक व्यू जो आप देख रहे हैं। और जैसा मैंने पहले आपको कहा कि विलाई और क्रिप्ट्स के ब्रश बॉर्डर सेल्स में फाइनल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती हैं, यानी डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, nucleotidases, nucleosidases, intestinal lipase are released from the brush border cells of the villi. Therefore, these enzymes are also called as brush border enzymes. And finally, most of the product is broken down in duodenum and they will pass on to the jejunum and ileum where they will be absorbed. And if they are not undigested, if they are not absorbed, then they will passed on to the large intestine for the release. तो एक बार फिर समरी देखें आप, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, आपने बक्कल कैविटी में स्टार्च को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जिससे माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रेंस बने। देन वी स्टडीड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान ये रखना है कि स्टमक के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता हमारे केस में, लेकिन अगर गाय भैंसे हैं, मवेशी जो हर्बीवोरस हैं कुछ इन पर्टिकुलर, तो उनके स्टमक के अंदर र्यूमन होता है। र्यूमन में मिथेनोजन सेलुलोज का सिम्बायोटिक डाइजेशन करते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकलती है और ड्यूडोनम की जो विलाई है वहाँ से हमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स मिलेगी, जो कि वापस से माल्टोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को उनके बेसिक यूनिट्स में तोड़ देगी।
इसी तरह से फैट डाइजेशन, बक्कल कैविटी, स्टमक यहाँ पर नहीं होता क्योंकि फैट इमल्सिफाइड नहीं है, और स्टमक और बक्कल कैविटी में स्लाइटली मीडियम एसिडिक होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले बाइल जो है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स, इसको इमल्सिफाई करते हैं और फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देती है। This is how the digestion of fat take place mostly in the small intestine. And the important one is protein digestion. बक्कल कैविटी में कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। स्टमक के अंदर HCl की मदद से पेप्सिन जो है बहुत सारे प्रोटीन्स को तोड़ती है और प्रोटीओज और पेप्टोन्स बनाती है। छोटे बच्चों में रेनिन भी होगी और यह रेनिन मिल्क प्रोटीन कैसीन को कोआगुलेट करने का काम करती है ताकि उसे कुछ समय तक स्टमक में होल्ड किया जा सके। देन वी कम इनटू द डुओडेनम। डुओडेनम के अंदर पेनक्रियाज से बहुत सारी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आ रही हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, कोलेजिनेज, जिलेटिनेज, इस तरह से। एंड फाइनली जो इंटेस्टाइनल विलाई है वहाँ से डाइपेप्टिडेज निकलेगी और इस तरह से प्रोटीन्स विल बी डाइजेस्टेड टू देयर बेसिक फॉर्म, दैट इज एमिनो एसिड्स। सो वी हैव सीन स्टार्च digested by amylase to the maltose, and maltose is digested to monosaccharide, that means 2 glucose units, by maltase. Proteins by various proteolytic enzyme, that is protease, into simple amino acids. Lipids are digested after emulsification by lipase to produce the fatty acids and glycerol. These are the end product of the digestion. And then there is no significant activity in the large intestine, यानी कि अब अगर हम चलते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन डाइजेशन नहीं होगा। वाटर, मिनरल्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ विटामिन्स का यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर ज़रूर म्यूकस खूब सारा निकलता है, so that it act as a lubricant, so we can easily remove them out. The undigested, unabsorbed material is now called as feces. Feces जो है वो सीकम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। एक बार जब ये आगे बढ़ जाता है तो इलियोसिकल वॉल्व इसे पीछे जाने से रोकेगा, क्योंकि वॉल्व जो है वो बैक फ्लो को रोकता है। कुछ समय तक यह अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है रेक्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है टिल डिफेक्शन या डिफेसिएशन या इजेशन। अच्छा, ये तो हुआ डाइजेशन के बारे में। अब पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है बाय नर्व्स एंड हॉर्मोन्स। सो ऑल एक्टिविटीज ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अंडर न्यूरल, दैट मीन्स बाय नर्वस सिस्टम, एंड हार्मोनल कंट्रोल, एंड इट इज़ परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप सलाइवेशन का देख सकते हैं। अगर हमारे सामने खाना आता है या खाने की खुशबू आती है या कोई आपकी पसंद के खाने के बारे में बात भी करता है तो सलाइवेशन चालू हो जाता है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रिफ्लेक्सेस दैट इज़ गवर्न फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्मेल है या उसके बारे में हमने सुना है या हमने व्यू लिया है, एंड सलाइवेशन स्टार्ट, दैट मीन्स मैसेज इज गोइंग एंड इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड। सिमिलरली द गैस्ट्रिक जूसेस, उसको कब निकाला जाना है और कब रोकना है। देयर इज वन हार्मोन गैस्ट्रिन विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, और एक होता है इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि बेसिकली गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकता है। डुओडेनम से निकल रहा है इसलिए उसे एंटरोगैस्ट्रिन भी कह देते हैं। तो स्टमक के भी जो फंक्शंस हैं उनको भी नर्वस सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट किया जा रहा है। इसी तरह से न केवल सिक्रीशंस बल्कि मसल एक्टिविटी के रेगुलेशन के लिए भी नर्व के प्लेक्सस हैं। जैसे आप देख रहे हैं म्यूकोसा के अंदर मिजनर जो नर्व प्लेक्सस है वो प्रेजेंट होता है, और ओरेबैक नर्व प्लेक्सस जो है वो मस्कुलरिस यानी जो म्यूकोसा का पार्ट है उसके बीच में प्रेजेंट है। जो दो पर्पल कलर में हमने यहाँ नाम लिखे हुए हैं ये मसल बंडल के हैं,
और ये मसल बंडल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हमने ऊपर और नीचे की लेयर्स को यानी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को सेपरेट किया, तो येलो कलर के जो फाइबर्स हैं, दीज आर द नर्व फाइबर्स विच आर रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the muscles present in respective parts. एंड द जीआई एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स जो काम कर रहे हैं उनको भी हम एनलिस्ट कर सकते हैं। साथ ही जैसे जो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स है सी सी के स्टैंड्स फॉर कोलिसिस्टोकाइनिन, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज पेनक्रियोजाइमिन, दैट एक्ट्स ऑन द गॉल ब्लैडर टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ bile juice. Gastrin is for release of gastric juice from the stomach. And then there is secretin is related with this release of secretin juice, that is the bicarbonate rich juice released from the pancreas. तो इस तरह से यदि अपन देखें तो पूरा रेगुलेशन है। द ग्रीन एरो शोज स्टिमुलेशन के निकाला जाना है, द रेड एरो शोज टू स्टॉप द secretions, एंड दीज आर द हॉर्मोन्स जिसकी हम बात कर रहे थे। गैस्ट्रिन स्टमक की म्यूकोसा को स्टिमुलेट करेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रीशन के लिए प्रेरित करेगा। दे विल स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, यानी पेप्सिनोजन है, HCl है। सिक्रेटिन जो हार्मोन है वह डुओडेनम की म्यूकोसा से निकलता है, पेनक्रियाज को सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है और वहाँ से बाइकार्बोनेट रिच जूस निकलता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, द फुल नेम CCKPZ, यह भी डुओडेनम की म्यूकोसा से निकलेगा। पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इट ऑल्सो एक्ट ऑन द गॉल ब्लैडर एंड ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ द बाइल जूस। देन आई टोल्ड यू इनहिबिटरी पेप्टाइड या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये डुओडेनम से निकलता है और स्टमक के ऊपर एक्शन करके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकता है। कब रोकेगा? जब मैक्सिमम खाना कहाँ पर आ गया है? डुओडेनम में। मतलब अब स्टमक के अंदर खाना नहीं है तो गैस्ट्रिक जूस का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो उसको रोका जाएगा। सो दिस इज हाउ द डाइजेशन एंड इट्स रेगुलेशन टेक प्लेस। In my next lecture, I will tell about the absorption process of the digested food material. So thank you.